Today we will do part 3 of chapter 7. Theorem है SSS congruence. If three sides of a triangle are equal to the three sides of other triangle, then the triangles are congruent. मान लो दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, ये है डी ई एफ। इन दोनों में ये साइड बराबर है इसकी, ये बराबर है इसकी और ये बराबर है। गिवन टू ट्राइंगल A B C and D E F, in which AB is equal to DE, AC is equal to DF and BC is equal to prove। क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल DE F। थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें हम। एक triangle ABC and put it on triangle DEF such that BC covers its equal side EF. Point B cover point E and point C cover point F, and point A takes the reverse side and named as A। ये इधर आ जाएगी, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगी, इसका नाम रखेंगे हम के। ज्वाइन डी के, इसको ये मिला देंगे हम इसमें, इसको मिला देंगे। ये मान लो ओवर काटता है, एक ये एंगल बनता है, एक ये एंगल बनता है। नाउ इन ट्राइंगल DEK, इस DEK में DE इज इक्वल टू EK, DE इज इक्वल टू EK कंस्ट्रक्शन से, और गिवन भी है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। व्हेन साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली in triangle DFK, DF is equal to FK, DF is equal to FK, therefore एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2।
adding 1 and 2, angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4, or angle D is equal to angle A. Now, but angle K is equal to angle A construction से, therefore angle D is equal to angle D is equal to angle A. Now in triangles ABC and DEF में क्या क्या बराबर है? ये एंगल इसके बराबर होगा पूरे के, AB is equal to DE, angle A is equal to angle D, and AC is equal to DF. AC is equal to DF. ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये प्रूव किया हमने. So triangles are congruent by side rule of congruency. Therefore triangle ABC is congruent to triangle DE. Okay. Now theorem 7.5, ये अच्छी इंपॉर्टेंट है. RHS, right angle, hypotenuse and side. If in two triangles, hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then triangles are congruent. दो triangles हैं, triangle A, B, C and triangle D, E. ये हाइपोटेन्यूज इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, दिया है. क्या है? गिवन टू ट्राइंगल इन विच राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल यानी कि ये एंगल 90 और ये एंगल 90, इन विच हाइपोटेन्यूज AC is equal to DE, side AB is equal to DF. ये दिया है, प्रूव कराना है कि ABC is congruent to DEF. क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ABC, triangle ABC is congruent to triangle DEF. उसकी तरह इसमें भी हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. टेक triangle ABC and put it on triangle DEF such that AB covers its equal side DF and point C takes opposite side
साइड, अपोजिट साइड ऑफ ई। ये ऐसे, ये ट्राइंगल ऐसे आ जाएगी, ये पॉइंट ए, अपोजिट साइड ऑफ ई एट के। नाउ this angle is 90 degree, this is 90, this is also 90. Now proof एंगल 1 या एंगल एफ लिखेंगे इसको, या एंगल 2, एंगल 1 प्लस इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड डी एफ के, इन ट्राइंगल्स या ऐसे करो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री, therefore angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. Therefore EFK is straight line by linear pair. Now DEK is a triangle and is a triangle, इससे linear pair से, in triangle DEK DE is equal to DK, DE is equal to DK, therefore angle E is equal to angle K, angle E is equal to angle K, but angle K is equal to angle C, कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्ट किया उधर, therefore angle E is equal to angle C, angle E is equal to नहीं एंगल C, इससे प्रूव कर लिया हमने. Now in triangle ABC and DE, अब इधर आ जाओ, ये एंगल बराबर इसके हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है. AB इज इक्वल टू AB है, DF है, ठीक, और ये एंगल दोनों बराबर है, ये साइड बराबर है, तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉम्प्लीट. AB इज इक्वल टू AB, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, एंगल 1 ये दिस इज इक्वल टू एंगल 3, कर लो इसको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज 90 डिग्री, ये दिया है, ये हमने प्रूव किया. तो बाई एंगल साइड प्रॉपर्टी ऑफ congruency, triangles are congruent, therefore triangle ABC, right, triangle ABC is congruent to right triangle DE. Now we are doing exercise 7.3 based on congruency of triangles. एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका,
दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी बी सी, एक ही बेस बी सी पर है और एक ही साइड में उनके वर्टेक्स हैं ए और डी पर। ठीक है, तो वो प्रूव करा रहा है, एक पॉइंट ए से डी को मिला के पी पर खींच दिया हमें, डी से गुजरता हुआ, तो इंटरसेक्ट बी सी एट पी, बी ये पी पर काटता है। अभी वो पूछ रहा है ए बी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी ट्राइंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी ये इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी। ठीक है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी, ए पी, ये ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर प्रूव करो और ये एंगल इसके बराबर प्रूव करो, अभी तो दोनों को बाइसेक्ट करेगा। तो वी टेक वन बाय वन। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी में क्या क्या बराबर है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, डी बी इज इक्वल टू डी सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये भी दिया है, एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये भी कंस्ट्रक्शन दी हुई है। देयरफॉर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक हो, दूसरा पार्ट लिखते हैं। अब वो कहता है ट्राइंगल ए पी बी, ए बी पी या ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी। अब इसमें क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी। इससे अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल, ये दूसरा था ए बी पी एंड ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी में क्या क्या बराबर है? देखो, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और एपी कॉमन है दोनों में। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए बी गिवन, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी, ए बी पी एंड ए सी पी, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव कर दिया हमने। AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन है, बाय दो साइड और बीच का एंगल, साइड प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दूसरा पार्ट आपका खत्म हो गया। AP बाइसेक्ट एंगल A एंड आल्सो एंगल D, एंगल A का तो बाइसेक्ट निकाल दिया हमने, 1 और 2 इक्वल कर दिए एंगल, अब ये 3 और 4 फिर हमें इक्वल करने हैं, ये लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ये DBP एंड DCP में क्या क्या बराबर है? देखो, DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC, ये गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं,
DP is equal to DP is equal to DP DP is equal to DP, ये है कॉमन। और क्या इसमें बराबर है, ये एंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी थी, इसलिए देयरफॉर ये BP इज इक्वल टू PC, ये प्रूव कर दिया इसमें हमने सेकंड में। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो ये BP इज इक्वल टू PC, ठीक है। तो बाय साइड ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, DP कॉमन है, SSS रूल ऑफ by SSS rule of congruency, triangles are congruent. Therefore, angle 3 is equal to angle 4 CPCT, ठीक हो गया। तो एंगल AP is bisector of angle A and as well as angle T. Therefore, प्रूव कर दिया हमने AP is bisector of, ये AP is bisector of एंगल A एंड एंगल D। अब हमें प्रूव करना क्या है, AP is perpendicular bisector of BC, AP is perpendicular bisector of BC, यानी कि ये दोनों एंगल हमें 90 के प्रूव करने हैं। ये एंगल 5 ले लो, ये एंगल 6 ले लो। चौथे में एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर से, बट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये प्रूव कर दिया हमने, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। इट मीन्स इट इज, ये दोनों बराबर भी है और ये परपेंडिकुलर है। देयरफॉर AP is perpendicular bisector of BC. So, in question number 2, एक ट्राइंगल दी हुई है ABC आइसोसेलेस, इट मीन्स दिस और दिस साइड्स आर इक्वल, ट्राइंगल इन विच AB is equal to AC, ठीक है। शो दैट AD is an altitude, AD altitude है, इट मीन्स ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री। शो दैट AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, हमें इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो दूसरा भी हो जाएगा, AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हम प्रूव कर दें, और ये एंगल ले लिया हमने 3 और ये 4। नाउ सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ABD एंड ADC में क्या क्या बराबर है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन AD इज इक्वल टू AD कॉमन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, each 90 degree. Therefore, triangles are congruent
by RHS. Right angle, hypotenuse and side rule of congruency. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. ये सेकंड है AD. Therefore, AD is bisector of angle A. ये और ये बराबर हो गए तो इसका बाइसेक्टर हो गया ये BD इज इक्वल टू DC, यही प्रूव करना था. और angle 1 is equal to angle 2, AD is bisector of angle A. Now in question number 3, ये given figure है two sides AB and BC. AB and BC ये पूरी BC and median, ये median है इनका. AM of one triangle are equal to side PQ and QR. ये PQ और ये QR and median PN, ये median PN of दूसरी ट्राइंगल PQR का है. तो शो फर्स्ट क्या है, ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN. ABM और PQN को हमें कॉन्जुगेट करना है. तो इन ट्राइंगल ABM एंड PQN में ये मीडियन है वर्टेक्स A से BM पर. पहले ये प्रूव करते हैं हम. BC इज इक्वल टू QR. ये तो गिवन है. हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR या BM इज इक्वल टू QN. मीडियन फ्रॉम opposite vertex divide the side in equal parts. इन ट्राइंगल्स में क्या क्या, अब इसको लेते हैं AB. इन ट्राइंगल्स AB इज इक्वल टू PQ. AM इज इक्वल टू PN. ये गिवन है, ये भी दिया है. एंड BM इज इक्वल टू QN प्रूव हमने किया है. Therefore, by side property of congruency, triangles are congruent. Triangles are congruent. Therefore, एंगल, ये एंगल 1 लिखो, इसको एंगल ये 2 ले लो. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPC. सेकंड पार्ट, ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. इसमें क्या क्या बराबर है, AB और PQ बराबर है. एंगल ये बराबर है और Q1 और ये BM बराबर है. सॉरी, ये BC और QR बराबर है. तो AB इज इक्वल टू PQ ये दिया है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया है. और BC इज इक्वल टू Q और ये भी गिवन है. Therefore, by side property of congruency, triangles are congruent. ये प्रूव.
इन क्वेश्चन 4 एक ट्राइंगल है ए बी सी दिया हुआ है, टू इक्वल अल्टीट्यूड्स, ये अल्टीट्यूड्स हैं अपोजिट साइड से ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यूज RHS congruence रूल, प्रूव ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी सी आइसोसेलेस है, मींस ये साइड और ये साइड हम प्रूव कर दें बराबर तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इन ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल बी एफ सी एंड बी ई सी, पी ई सी में क्या 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 बराबर है? बी एफ सी और इसमें ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री गिवन है, इसमें अल्टीट्यूड है। अब ये भी बराबर दिए उसने, बीई इज इक्वल टू एफ सी, बीई एंड एफ सी आर टू इक्वल अल्टीट्यूड, बीई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ सी एंड बी सी ये गिवन है, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, देयरफॉर बाई RHS rule of congruency triangles are congruent. Therefore, angle ABC is equal to angle ACB. Angle ACB. So, in triangle ABC, the angle B and C are equal. Therefore, AB is equal to AC. ये हमने एक किया था ना कि एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB is equal to AC, therefore triangle is isosceles. क्वेश्चन 5 में क्या है? ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, AB is equal to AC. Draw AP perpendicular BC, AP perpendicular BC so that angle 1 और angle 2 कितने होंगे? 90 डिग्री, and show that angle B is equal to angle C. ये उसका कन्वर्स है पहले थ्योरम का लगभग, तो इसका सॉल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए सी सी, इसमें क्या क्या बराबर है? अगर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो बी और सी एंगल बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो दिया है उसने, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री, और AP इज इक्वल टू AP कॉमन, देयरफॉर बाय RHS रूल ऑफ congruency triangle are congruent. Therefore, angle B is equal to angle CPCT. Now, chapter 7 is over. All theorems and exercises I have done here. Thank you. एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये PAR is an angle and AQ is
इट्स बाइसेक्टर। ट्राइंगल ये और ये आपको प्रूव करने हैं कि ये दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाई आरएचएस रूल से। ओएल और ओएम, ओएल और ओएम इनके परपेंडिकुलर है, तो प्रूव बाई आरएचएस रूल। वेलकम।